पीछे टावर ऑफ लंदन है। जो कैप्टन का कंट्रोल है उसको पकड़ के भी तस्वीरें खींची, लेकिन आई मस्ट से दे वर ऑल लवली पीपल। इसमें ये है कि हम यहाँ से टावर ब्रिज से रवाना हुए हैं और अबाउट 30 मिनट्स हम राइड करेंगे ग्रीनिच की तरफ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ ਕਨਵਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है जी आपकी GMT लाइन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी लंदन की यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ। इस दफ़ा प्लान है कि कुछ चीज़ें हम ऑन फुट देखें और फिर एक नया हम वो करना चाहते हैं राइड, एंड दैट इज़ ऑन द बोट। बोट पे राइड लेने का फ़ायदा ये है कि ये टेम्स में आपको लेके जाएगी और आप राइट साइड लेफ़्ट साइड सारी स्पेशल चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो उसका अब हम देखते हैं कि कहाँ से हमने वो बोट टूर लेना है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि हमारा प्लान है कि हम एक क्रूज़ लेते हैं। तो ये हैं वो सिटी क्रूज़। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ से हम क्रूज़ लेते हैं बजाय इसके कि हम हॉप ऑफ ऑन ऑफ साइट सीइंग बस लें। तो विल टेक दिस क्रूज़। ये बस का टिकट तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इन बूथ से भी, लेकिन बोट का टिकट आपने ऑनलाइन लेना है। तो नीचे चलते हैं। तो ये तो एग्ज़िट है, नो एंट्री लिखा हुआ है, उस तरफ से आपने एंटर होना है। तो उधर चलते हैं, ऑनलाइन टिकट लेते हैं और फिर इसमें सवार होते हैं। तो टिकट हमने ऑनलाइन बुक किया और काउंटर से टिकट ले लिया और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। So we are here. So these nice people are waiting for us. Welcome on board. Mind your step, sir. Welcome. Mind your step. Have a little step through to go up. Small coffee shop is here. ये लें जी, हम अपने शिप पर आ गए हैं, क्रूज शिप पर। सिटी क्रूज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो होप इट विल बी गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। Waterloo here for the London Eye. I know we're going to drop a couple of people off, but I can't imagine too many of you. It'll be a very short trip. It is very huge. Doesn't look that huge when you are standing on the far side of the bridge, but it is very huge. वो बैकग्राउंड में दर्शार भी देख सकते हैं। Are you sick of me already? We'll start off with this bridge. It's Waterloo Bridge, better known as the Ladies' Bridge, built by the ladies in the Second World War while the men were fighting. It's made of a Portland stone, self-cleansing. So you see the front This is very bridge is clean. called The underside is Waterloo very Bridge dirty. or Ladies' That's Bridge. because every time it rains here in London, which is very rare, I सामने think it's one of the नेशनल ugliest in थिएटर है। England. But they say don't judge a book by its cover. Inside there are 3 separate auditoriums, including the world famous Olivia, named after one of the founding members. Over on the left you've got a white boat with a beige funnel. This is the HQS Wellington, formerly of the New Zealand Royal Navy. What that really means is that boat is a drinking club for retired captains. Now my grandfather was a member of that company. And my dad was recently फोर्सेस के invited. लोग हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपने 25 years सर्विस की हो। We've just passed Temple Arch on the left. That's a boundary marker telling us we've just left the city of Westminster and we're entering the city of London. The building on the right with the white stripes and the concrete tower, this started its life as a power station. It was then bought by the Oxo company who make the little stock cubes. The more expensive it gets. So the captain lives somewhere in the middle. He wishes. The high tide and the lowest of the low tide. When it's half moon, it's the highest of the low tide and the lowest of the high. So
That's the railway bridge. It's also the railway station here at Blackfriars. So we're about to sail underneath a fully functioning railway station. But these bridges are better known to us on the Thames as the Tunnels of Love. So if you just come and make a nice orderly queue, I'm sure he'll be happy to go round and round. और ये अंडरग्राउंड ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती हैं। You can pay वेटिकन सिटी के बाद have a ये look सबसे बड़ा round, learn all the टोल है history जिसके inside बीच those, and they में are सपोर्ट के speaking. हिसाब से You can साइज के then हिसाब climb the से over 500 steps to the top of the dome to the viewing platform. But a bit of local knowledge for you. If you're here on a Sunday morning, और ये जो सामने it's है open to the public for mass. बिल्कुल फोरग्राउंड में ये So it's free. सिटी ऑफ लंदन स्कूल है। When I say it's free, that is a church. ये मिलेनियम ब्रिज है जो कि वॉकिंग ब्रिज है, बहुत फेमस है। इसके ऊपर भी हम पिछली तीनों दफ़ा आए थे, वॉक किया था। The bridge we're going under now, this is the Millennium Footbridge, best known as the Wibbly Wobbly Bridge. बारिश तो On the इसे right, तेज हो you've got a गई है, white and but timber still frame it building looks with a very thatched good. roof. A waterman, just like our captain is today. Bricked up our पीछे टावर ऑफ लंदन है। Lucky, he would have been hung, drawn, and quartered. Now, if any of you have seen the film Braveheart, Hollywood would have you believe that at this very point, your first thought is to shout the words, "Freedom!" Bags and passports, your husbands, your wives. बहुत डिफरेंट किस्म के क्रूज़ हैं और डिफरेंट किस्म की बोट्स No one हैं। ever came back for me. यानी They इसमें put me to work in थेम्स the engine में room the very ऊबर next day सर्विस and भी I've never है। left to keep you all अब ये safe. यहाँ पर एक स्टॉप We don't करेंगे। charge you in the price जिन्होंने of the यहाँ ticket तक for a आना live था वो concert. उतर It जाएंगे, simply wouldn't be fair. नए जिन्होंने Because ज्वाइन there's करना other होगा crowds ज्वाइन of beautiful करेंगे places here और on हम the यहाँ top से tonight. कंटिन्यू I can करेंगे tell that some of you ग्रेनिच की तरफ। have not ग्रेनिच understood a के single बारे word में मैं that I've वहीं been चल के saying. आपको बताऊंगा। But if you शायद haven't आपको समझ भी आ गया understood, होगा कि वो कौन सी maybe जगह a है। little entertainment, and you wish to show an appreciation for my efforts, you're more than welcome to. देखिए मैं आपको ऊबर बोट का बता रहा था, तो ये ऊबर बोट भी हैं, लेकिन आप इस पे इतना एंजॉय नहीं कर सकते बिकॉज दे टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद स्पीड। ये सामने HMS बेलफास्ट खड़ा है। ये 1938 में बना था और 1939 में वर्ल्ड वॉर से पहले ही सर्विस में आ गया था। तो रॉयल नेवी का शिप था। उसके बाद ये जब शिप रिटायर हुआ तो अर्ली 80s में ही इसको यहाँ लाके खड़ा कर दिया गया और ये इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। 1986 में जब हम पहली दफ़ा आए तो उस वक़्त इतनी ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं होती थी देखने वाली या जाने वाली, तो ये भी यहीं खड़ा था तो हमने इसका भी टिकट लिया, हम इस पर भी आए। तो बस एक पुराना शिप था, इसमें पुरानी बस चीज़ें थी जैसे वॉर में होता है, इसकी गान्स वगैरह लगी हुई हैं सामने, अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी। अच्छा, उस वक़्त एक नेवी का बिल्कुल 1986 में बिल्कुल ब्रांड न्यू और उस वक़्त के हिसाब से वो स्टेट ऑफ द आर्ट विद फुल ऑफ टेक्नोलॉजी शिप जो था वो कमीशन हुआ था और वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी एक तरह से, और जो नेवी के और फोर्सेस के लोग थे उनको वो दिखाना था, उनकी फैमिलीज़ को दिखाना था। तो वो इस तरफ रिवर में यहाँ पर उसको डॉक किया गया और इससे एक स्टेयर उसके साथ स्टेयर जोड़ी गई और वो था सिर्फ उन लोगों के लिए। अच्छा, हम आए इस शिप को देखने और हम इस शिप को देख रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि वो शिप जो है वो सिर्फ फोर्सेस और नेवी की फैमिलीज़ को दिखाने के लिए लाके यहाँ पर पार्क किया गया है और सिर्फ वो जा सकते हैं। हम नए वाले शिप में आ गए और हम नए वाले शिप में खूब इंजॉय किया, उसकी चीज़ें देखी, उसको एक मतलब उसकी एक एक चीज़ हमने देखी अच्छी तरह। उसके डाइनिंग हॉल में गए, उसके किचन में गए। जब डाइनिंग हॉल में गए तो वहाँ जो वो थे होस्ट थे, उन्होंने हम सबको खाने के लिए आइसक्रीम भी दी। उसके बाद हम फिर भी हमें भी बिल्कुल नहीं पता लगा और वी केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग द शिप और हम उसके डेक पे चले गए। वहाँ हमने कैप्टन से भी हेलो है कि वहाँ पर हमने डेक में खड़े होके
जो कैप्टन का कंट्रोल है उसको पकड़ के भी तस्वीरें खींची, लेकिन आई मस्ट से दे वर ऑल लवली पीपल। किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा कि हम कौन हैं, एंड वी वर दी ओनली एशियंस। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है थोड़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो हमारी ये दूसरा पोर्शन शुरू हो गया है राइड का। इसमें ये है कि हम यहाँ से टावर ब्रिज से रवाना हुए हैं और अबाउट 30 मिनट्स हम राइड करेंगे ग्रीनिच की तरफ। ग्रीनिच लंदन के सबब्स में वो जगह है जहाँ का टाइम जो है वो ग्रीनिच मीन टाइम कहलाता है, GMT टाइम। पहले मैं कई दफ़ा लंदन आया, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता था वहाँ जाने का, बट मैं वहाँ जा नहीं सका। इस दफ़ा मुझे पता लगा कि ये इस तरह बोट राइड है, और बोट का अगर आप चाहें तो आप ग्रीनिच तक ये क्रूज़ लेके कर सकते हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट। चूँकि आज से कुछ 100 साल प्लस पहले ज़ाहिर दुनिया पे इन्हीं लोगों की कंट्रोल था, और ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों पे इनका कंट्रोल था, एशिया में भी, अफ्रीका में भी। इन्होंने इस टाइम को स्टैंडर्ड लिया GMT को, और वो सारे कंट्रीज़ जो यहाँ से ईस्ट की तरफ हैं उनका टाइम प्लस में होगा, जो GMT से वेस्ट की तरफ हैं उनका टाइम माइनस में होगा। तो जब दोपहर के 12 बजते हैं यहाँ ग्रीनिच पे, तो पाकिस्तान चूँकि 5+ है, तो पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रात के 10 बजते हैं। न्यूजीलैंड उससे भी आगे है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, US कनाडा, तो वो टाइम उनका पीछे होगा। ये है GMT, और ग्रीनिच हम पहुंचेंगे और उसको भी देखेंगे, और वहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ भी है जो हमने पहले नहीं की थी, तो वो भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये सामने लिखा हुआ है कैनरी वार्फ, तो ये भी लंदन की एक मशहूर और बहुत बिजी जगह बन गई है। जब 2019 में मैं आया था और मैंने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस भी देखे थे, तो हम यहीं नज़दीक ठहरे थे। ये दूसरे पोर्शन में हमारे साथ बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग सर्दी और ड्रिजलिंग की वजह से नीचे चले गए हैं, और थोड़े ही लोग ऊपर रह गए हैं। ये हमारा 1 वे जो है 14 पाउंड का टिकट था। तो ऊपर काफ़ी ठंडा मौसम हो गया बारिश की, हल्की हल्की बारिश की वजह से। तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ा सा नीचे चले जाएं और नीचे आराम से बैठ के देखें। तो ये भी बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है। चलें जी, डेस्टिनेशन आ गया है, चलते हैं और फिर आगे ग्रीनिच को देखते हैं। हाँ जी, ये देखो जी, मैंने बोट पे मिले, और ये साढ़े बोट के स्टाफ दे सन, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਕਨਵਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। थैंक यू। तो ये हम अपनी क्रूज़ से उतर के आए, और ये हमारा ग्रीनिच का टाउन आ गया। तो अब हम वहाँ जाना चाह रहे हैं जहाँ पर कि वो उन्होंने टाइम इस्टेब्लिश किया हुआ है, GMT टाइम। क्रूज़ से या बोट से उतर के आते हैं, तो जैसा कि होता है सी पे या इस तरह के रिवर पे, तो हम पहुँचे हैं ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज। तो ये ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज है, और यहीं पर वो बाहर बहुत ही एक खूबसूरत आइकॉनिक शिप खड़ा है। तो ये तो मैं आपको इसका बस थोड़ा सा एक सामने विज़िटर सेंटर भी बना हुआ है वैसे तो देखें, ये इनका मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ओल्ड नेवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच। देखिए, रॉयल म्यूज़ियम ग्रीनिच, और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत, इसका नाम है जी कटी शार्क, कटी शार्क, SARK। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ सार्क और इज़ इट शार्क। ओह माय गॉड, अब इसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, गूगल करनी पड़ेगी। और ये जो भी मैं दिखा रहा था आपको, नेवल कॉलेज। सर वॉल्टर रेले 1552, 16, 18
मैंने चेक किया इनसे तो 4:15 हो गए हैं और 5 बजे म्यूज़ियम क्लोज़ हो रहा है. देयर इज़ नो फन हैविंग टिकट फॉर दिस एंड गोइंग इनसाइड बिकॉज देयर इज़ नो टाइम लेफ्ट. GMT वाले प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलते हैं और इसी को पूरा करते हैं. मैं ऐसे अपना GoPro ऑफ करता हूँ, बंद करता हूँ, रखता हूँ तो फिर कोई चीज़ नज़र आ जाती है. तो ये मॉन्यूमेंट अभी मैंने देखा था तो इसके साइड पे इसकी डिटेल लिखी हुई है. इस साइड पे ये कह रहा है इसका नाम है न्यूजीलैंड और ये मॉन्यूमेंट उन्होंने उनकी मेमोरी में बनाया था जो लोग न्यूजीलैंड में 1863 में और 1864 में वहाँ पर जो लोग लड़ते हुए मरे थे, इस तरफ भी और इस तरफ भी उनके नाम लिखे हुए हैं. उनके नाम भी लिखे हुए हैं और रेजिग्नेशंस भी लिखे हुए हैं और इस तरफ भी यही है. तो वो पहले मैंने यहाँ से देखा था तो मुझे पता ही नहीं लगा था, बट इस साइड से मैंने देखा तो यहाँ इसका ये डिटेल लिखी हुई थी. देखें जी, सामने से इसका व्यू है कटी साहब का और कटी शार्क का, और वो सामने थे और पीछे शार्क और ये कैनरी वाव. यहाँ से थेम्स से उतर के हम इस तरफ आए. इतना खूबसूरत सा बहुत पुरानी ये एरिया है, लेकिन अच्छी लग रही थी ये शॉप्स इस तरह. डेनमार्क्स फेवरेट बेकरी, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है यहाँ पे. ये देखें जी, 10 मिनट की वॉक के बाद हम ग्रीनिच पार्क में दाखिल हुए हैं. वी आर हेयर, ये इस गेट से हम अभी दाखिल हुए हैं और ये मैप लगा हुआ है. And you can see this line, Greenwich Meridian line, और ये longitude 0. तो ये मैं देखने आया था और अभी चलते हैं इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जहाँ ये लाइन 0 है, जहाँ GMT आवर्स 0 है. ईस्ट की तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं वो प्लस में होंगी, वेस्ट की तरफ जितनी कंट्रीज़ हैं वो माइनस में होंगी. तो आइए चलते हैं. तो ये मेरे पीछे गेट है, यहाँ से मैं एंटर हुआ जो मैंने आपको मैप दिखाया है. तो अब मैं वॉक करता हुआ इस पे मेन स्ट्रीट है. इट इज़ कॉल्ड द एवेन्यू in this park, Greenwich Park, and we are walking to a place where we have this 0 GMT line and I'll be showing you that. I'm really excited. ये मुझे हमेशा से, अच्छा एविएशन में इतना टाइम गुजारा तो फ्लाइट का टाइम देखना, और जाहिर है वो लोकल टाइम्स होते हैं एंड यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ GMT, क्योंकि कई दफ़ा एक्चुअल फ्लाइट टाइम और होता है और क्लॉक पे कुछ और नज़र आ रहा होता है. जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो क्लॉक पे कम घंटे गुजरते हैं. यू गेन द टाइम. आप कराची से न्यूयॉर्क या कराची से टोरंटो जाएं तो सुबह चलते हैं और दोपहर को पहुंच जाते हैं, तो क्लॉक पे 6 घंटे मेरा ख्याल गुजरते हैं. लेकिन वो जो 9 आवर्स का टाइम डिफरेंस होता है तो वो अगर उनको मिला लें तो 15 आवर्स होते हैं. सिमिलरली अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो वही 14 घंटे की फ़्लाइट जो है वो 20 घंटे की हो जाती है टाइम डिफरेंस की वजह से. तो ये जाहिर है जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं, ज्योग्राफी का पता होता है, उन्हें ये सब पता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये नया होता है या उन्हें समझना मुश्किल होता है, तो उनके लिए भी ये नॉलेज हो जाएगी. और मैं चूँकि कई दफ़ा यहाँ आया हूँ और यहाँ आना चाहता था बट नहीं आ सका था, तो इस दफ़ा मैंने इसको अपने आइटनरी में ऐड किया. नाइस पार्क लग रहा है, देखें. मैं पहले आपको यहाँ लेकर आना चाहता था. यहाँ आने से कोई 100 मीटर पहले ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का कैंपस भी था और उसके बाहर भी उसकी सारी डिटेल थी. तो मैंने कहा मैं पहले एक्चुअल लाइन पे पहुँचता हूँ फिर आपको वो दिखाता हूँ. यूके के बारे में एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती है. यूके लैंड के हिसाब से कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इन्होंने मतलब नेचुरल पार्क्स को, फॉरेस्ट को इतनी अच्छी तरह रखा हुआ है कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. लोग ज़मीन को ज़ाया नहीं करते, लोग जंगलात को ज़ाया नहीं करते. मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता अपने व्लॉग्स में कि जिसमें किसी को कोई बात अच्छी ना लगे, लेकिन जैसे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ हमारे प्यारे मुल्क में अच्छी ज़मीन को, ज़रूरी ज़मीन को हाउसिंग सोसाइटीज़ बना बना के ख़त्म किया जा रहा है. अब देखें सिटी के बीच में ये सब जंगल है, यहाँ लोग आ रहे हैं
साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चों को लेकर फिर रहे हैं, फ्रेश एयर का इस्तेमाल, उसका यूजेज। तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास हम पहुंच गए हैं और यहीं पर हमें वो लाइन भी नज़र आना शुरू हो गई है। तो आए सबसे पहले तो हम अपनी लाइन को देखते हैं। तो ये है जी आपकी GMT लाइन। देयर वी गो। जो कंट्रीज़ यहाँ से मेरे सीधे हाथ की तरफ ईस्ट की तरफ हैं, लाइक पूरा यूरोप है, उसके बाद टर्की है, मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और आगे फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वो सारे चूँकि ईस्ट पे हैं तो वो यहाँ से प्लस में होते हैं, और जितनी कंट्रीज़ वेस्ट की तरफ हैं लाइक US, कनाडा है, साउथ अमेरिका है, वो सारी कंट्रीज़ इस 0 आवर से माइनस पे होती हैं। तो आए आगे चलते हैं और आगे से रॉयल ऑब्जर्वेटरी का चक्कर लगा के आते हैं। वैसे तो वो बिल्डिंग में 5 बजे आई थिंक बंद हो जाना था, तो चलिए देख कर आते हैं उसके बाहर से। तो चूँकि हम लेट पहुँचे हैं तो जो यहाँ पर अंदर लाइन है वहाँ अब हम नहीं जान सकते, 5 बजे तक टाइम था। तो बाहर हमने इस लाइन को ऑब्ज़र्व कर लिया है। ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी और मैरीटाइम म्यूज़ियम है। और मैं आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये एक जेम्स वुल्फ मेरे पैदा होने से 200 साल पहले ये इंतकाल कर गए थे, और विक्टर ऑफ क्यूबेक हैं। दिस मॉन्यूमेंट इज द गिफ्ट ऑफ कैनेडियन पीपल, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस एज वेल। और अब आप यहाँ से ये देखें कि ये लंदन सिटी का एक व्यू है। अब इस दफ़ा इतनी नई चीज़ें देखी हैं, देखने में एक्साइटमेंट भी हुआ है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 1700 टाइम दिखा रहा है। इस वक्त लोकल टाइम जो है वो 1800 है, जो कि समर में ब्रिटिश टाइम जो है वो GMT से 1 घंटा आगे हो जाता है। तो शाम के 6 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर 17 GMT टाइम इज़ 17, ठीक है। फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 0 hours. So this is how it works. ये देखें यहाँ ये वॉल पे और ये फ्लोर पे, यहाँ पर भी ये दूसरी साइड पे निशान है। और ये आप देखें कि ये ग्रीनविच लाइन का बताया हुआ है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये ईस्टर्न साइड पे टाइम प्लस होगा और ये वेस्टर्न पे टाइम माइनस होगा। रॉयल ऑब्जर्वेटरी पार्क से जब हम निकल के आते हैं तो 5-7 मिनट की वॉक के बाद ये ग्रीनविच यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच का कैंपस है, और इन्होंने इसके सामने मैरीटाइम ग्रीनविच और वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन्होंने यहाँ पर वो टाइम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये अगर 0 है तो यहाँ 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और इधर ज़ाहिर है टाइम कम होगा। चलिए ये GMT और ग्रीनविच का टूर जो है ये कंप्लीट होता है। होप यू विल एंजॉय दैट एंड कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।